So good morning, one and all. So we are starting where we have stopped in the last class because of bad connection, and literally I think so I was discussing इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और उसमें बहुत मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आगे मूव कर जाऊंगा बेटे, और कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा फटाफट इस चीज के लिए, ठीक है. So I was explaining, if you remember, the APCDs to all of you, the air pollution control devices. मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, APCD, ठीक है जी, APCD एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस. और मैंने उसको बताया था कि APCDs are basically control devices which are being used to get rid of or get control of the air pollutants. तो अभी जो बात कर रहे थे हमने, ग्रेविटी सेटलिंग, साइक्लोन, बैग हाउस, दिस. So there are different applications as per the requirements of the industry, as per the requirements of the industry. तो इंडस्ट्री में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होंगे, डिफरेंट कैटेगरी के होंगे, डिफरेंट एप्लीकेशंस के होंगे. सो अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के ये एपीसीडी यूज किए जाएंगे. So we are discussing a wide variety of APCDs, like depending upon size they capture, depending on material they capture, depending on gases they capture. So whatsoever the application you are dealing with in the industry, so you are going to use that particular kind of APCD. Okay, so electrostatic precipitator, I told you, this is something a very very uh, uh, sophisticated this APCD used in the industry, because this is being used for a particle size near about 1 micron, less than 1 micron, which cannot be removed by any other APCD. But their operation, their maintenance, their working is too costly. Why? अभी बता रहा हूँ इसके बारे में. So अब फटाफट इसमें डिस्कस करूंगा जितना भी कर सकता हूँ, बाकी ये आपके लिए छोड़ दूंगा, बाकी मैं फिर आगे मूव कर जाऊंगा बच्चे, ठीक है. बाकी एपीसीडी पे जो एक दो बचे हुए हैं. So electrostatic precipitators, they are going to use the electrostatic forces to separate the dust particles. कैसे करते हैं? So we have two kind of electrodes. First is the direct current discharge voltage, and they are placed between the grounded collecting electrodes. I'm going to show you. So there are two kind of electrodes: DC, direct current discharge electrodes, जो करंट जो वो हाई वोल्टेज डिस्चार्ज करेंगी, एंड ग्राउंडिंग करेक्ट कलेक्टिव इलेक्ट्रोड, जहां पे आपके पार्टिकुलेट्स कलेक्ट होंगे. होता क्या है मैं आगे बता रहा हूं, सुनो फटाफट. द कंटेमिनेटेड गैसेस दे फ्लो थ्रू द पैसेज फाउंड बाय दीज टू इलेक्ट्रोड्स. जो भी बताने वाला हूं आगे, ये देखो यहाँ पे. ओके, so what is exactly happening over here? When the gas or contaminated gas, from where you want to remove these kind of particles, very fine size particles, what will actually happen? High voltage is being generated. That high voltage may be to the around of 10,000 volts. Huge. Now see, if you want to generate 10,000 volts between these two electrodes in the system, how much energy you will be requiring? Huge. So what will be actually happening when you're going to generate this much of electrodes? The airborne particles which are flowing between these two kind of electrodes, which I've shown you or discussed with you, they receive a negative charge as they pass through the ionizing field between the electrodes. Now, what they will do, the negative charge particles, these charge particles, that they will attach to the pollutants. Once they attach to the pollutants also get charged. So when the pollutant gets charged, they will be collected towards the opposite electrodes, which are the positive charge collecting electrodes, which I want to show you, no doubt. Okay. तो बेसिकली इसमें चार वर्किंग प्रिंसिपल है बेटा, इसको देख लो. फर्स्ट इज कोरोना जनरेशन, particle charging, particle collection, and removal of particles, nothing else. Corona, you know corona, you must have seen in videos somewhere when high voltage is being applied between any electric particular field or electrodes, a blue luminous glow is being formed. You must have seen that blue luminous glow is being formed. That blue luminous glow is called corona in the terminology of when you're talking about electrical field. Corona. That's not exactly same. Corona, COVID, it's corona. It's generated around the electrodes, and it causes the ionization of the gas molecules, exactly, because it's a high voltage field, due to which the negative or positive ions, the free electrons are generated, which actually we want. So once this is being happening over there, second is the particle charging. So same thing, the negative ions travel towards the positive electrodes.
So that these negative charges or ions, when they travel towards the positive electrodes, they get attached to the dust particles. कौन से जो उसके बीच में present हैं. So dust particle also get charged. Which one? Negative charge. So they will be getting attracted towards the positive charge electrodes. These are called collecting electrodes. So they will be collected, they will be removed accordingly, and this is a working principle of ESP. I've explained to you, but I want to show a little bit about this also, but I've explained you more than sufficient being required for you. So this is working principle of ESP. What I'm showing, these are the discharge electrodes with negative polarity. This can be a positive polarity also, depending upon application. Okay, depending upon application. Gas, contaminated gas flowing, which is having a very fine size particles, maybe less than 1 micron, 1 micrometer. Okay, so these are the positive charge collecting electrodes. These are the positive charge collecting electrodes. So same thing, when the high voltage is being generated between these two electrodes by the discharging electrode, so this will be this electrode will generate the negative ions. These negative ions get attached to the gas molecules or the very fine molecules or the contaminated gas molecules. Okay, sorry, not molecules, particular matter. Okay, so once they attach to this, they will be also negative charge. Once they have a negative charge, they get attracted toward the opposite electrodes. These are positive charge. So once they get attracted to the opposite electrode, positive charge, they get collected. Once they get collected, it can be removed easily after that by shaking, by other mechanism. Okay. So this thing I have shown to you. Kindly go through it, beta. Okay. So these are some classification of electrostatic precipitators. Okay. So it can be of tubular type. I'm going to show you little bit. I'm going to show you. It can be a parallel plate type. Tubular is like this is a tubular. This can be of tubular type. So you have multiple tubes. Or plate type means you have a vertical plates type. I want to show you, no doubt. Okay, so dry and wet bottom, depending upon application, it can be dry or बेटा ग्रीक एक्टिव पैसिव जोन्स एक बार देख लेना बाद में बेटा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार पढ़ लेना उसको बेटा, डोंट वरी, यू कैन गेट बैक टू मी फॉर दैट. कहां पे देखा तूने एक्टिव पैसिव जोन्स बेटा? ठीक है, यहां पे बताया, कहां पे बताया, जहां भी बताया एक बार देख लेना बेटा उसको, ठीक है. और देन यू हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोरोना, आई टोल्ड यू. हाँ बेटा प्रीवियस स्लाइड उसको देख लेना एक बार, मैंने उसको समझ लेना, फिर गेट बैक टू मी. ओके, then you have negative or positive charge corona ESP depending upon application, or single or double stage depending upon where you're going to use. Single double stage means you at a single stage generate 5000 volt, then go to second, get to third, you have multiple stage ESP. So depending upon application industry, you have these kind of ESPs. So this thing I was showing to you, the tubular precipitators and plate precipitators. See there, here's a single, here the plate type is here. This is a plate, collection plates, this is discharging electrodes in between these things, and this is what I'm showing is the tubular. See this tubular over here, and in the center of tube there is a which look discharge electrode, and this surface of cylinder they are collecting electrodes. So this is something. निहाल एवलांचिक इफेक्ट एक बार पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है बेटा, एक बार गो थ्रू होना, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनो थोड़ा सा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारा कुछ, मैं जब मैं इतना कुछ पढ़ा रहा हूं तो वो भी पढ़ा दूंगा बेटे, ठीक है. एक बार आप सबके लिए छोड़ा हुआ है मैंने, ताकि आप उसको एक बार देख लो बेटे, ठीक है जी. और मैंने इसको इनडायरेक्टली समझा दिया मैंने आपको, बस एक बार इसको पढ़ लेना आप, मैंने कभी मना नहीं किया चीज के लिए, ठीक है. हाँ 2 दिन बहुत बिजी था, पीछे कुछ बच्चों के कॉल आए, मैसेज आए थे, तो मेरे को आप कल कॉल कर लेना बेटा डिस्कशन के लिए एनी टाइम. So this is plate and this is tubular precipitator, depending upon application and requirements and surface area required, they can be used in the industry. Okay, so this is a particle removal mechanism I have explained to you. Again the same thing, okay, once the dust has been accumulated on a certain thickness, so once a certain thickness has been maintained on the plate or the tube, you need to remove this kind of dust. Okay, so they are being removed by a process of called wrapping. So wrapping is by either shaking or spraying the water after the process is over. So wrapping is a process where the deposited tripod particles are dislodged from the collection plates by sending mechanical impulses. Shaking, I have shown you, I have told you,
or vibrations, I told you, or to the plates. Okay, so this is something you really want, because you want to remove these kind of dust which are being deposited on the collective electrodes. Okay, and discharge dislodged dust particles, they pass to the hooper. Hooper is a particular collecting container, that's called hooper, where the all the dust is being collected, and this stage is this particular precipitator can be used again. Okay, so this is the overall application of advantages of ESP and disadvantages of ESP. No doubt advantages are very high efficiency for small particles which cannot be removed by any other particular APCD, can handle a very large volume with a low pressure drop, because here you're talking about only a few pressure drop but high voltage is required. So that's why their disadvantage is high capital cost. So that's why industry where they should be implemented, they are reluctant to operate this kind of APCD. Why? Because the running cost is very high, because maintaining a 10,000 volt between the collecting electrodes is something very tedious work for industry. Okay, so will not control gases emissions, no doubt. Gases emission cannot be controlled by this kind of APCD. और उसके लिए कौन सा यूज होगा मैं आपको बताने वाला हूँ. Lot of space, lot of maintenance, these kind of things are problems are there, no doubt, with AESPs. And no doubt it is mandate for the industry producing a very fine size particles, because once the fine size particles are being released from the chimney or from the particular sources, they can get to the atmosphere. Once they get to the atmosphere, generally they can be dislodged to your lungs. It's very dangerous. So that's why they need to install ESP. They don't have any option. They have to install the ESPs. Okay, so you can note down this formula effectively, which is a collection efficiency of ESP, and this is given by particular this equation. This equation. So in this is efficiency is equal to 1 minus exponential raised to power this minus VPM. This VPM is the particle migration velocity. What is the particle migration velocity? ये वाली बेटा, ये आपकी थी collection electrodes, ये थी discharge electrode. तो discharge electrode में जब हम आयनाइज करते हैं तो particles जो चार्ज हो गए, how they are moving towards their respective electrode, how the charged particles are moving towards their respective electrodes. This is called particle migration velocity. Mind it, particle migration velocity. Okay. Yes, you can get a formula, numerical on the basis of this formula in EndSam, not in your MST quiz. You may get a numerical based on this formula on your EndSam, depending upon how they are being conducted. So please read this or grab this formula very carefully. Then AC is nothing but the area of the collecting electrodes, depending upon के वो circular है, plate हो तो length into breadth आ जाएगा, circular है तो कुछ और area आ जाएगा उसका. And Q, and mind it, ये Q सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पे ना बच्चे भूल जाते हैं, तो हम यहाँ पे numerical डालते हैं, तो मैं आपको hint दे रहा हूँ यहाँ पे. तो Q क्या है? Volumetric flow rate. तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो होता है आपको पता है इज मीटर क्यूब पर सेकंड. ओके, तो हम कई बार फ्लो रेट की वैल्यू सीधी नहीं होती है आपको पेपर में, तो बच्चे बड़े कंप्लेंट करते हैं कि सर ये +2 की नॉलेज है. हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लिया आपने, अब एरिया कौन सा निकालना है मैं बताऊंगा. इसमें निकालना क्रॉस सेक्शन एरिया. वेयर एज जो ये एरिया ऑफ कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है, ये सरफेस एरिया है. अगर आप मेरे को सही गेस कर रहे हो, द एरिया ऑफ कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स इज द सरफेस एरिया. क्यों? सरफेस पे कलेक्ट होंगे और जो गैस फ्लो होगी वो इसके बीच में से फ्लो होगी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा. तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी विल बी योर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. और ये हमने छोटा सा फार्मूला दे रखा है देखो ये वाला, और जो फार्मूले में हम फ्लो रेट देते नहीं है, उसको रेडियस दे देते हैं और वेलोसिटी दे देते हैं, तो बच्चे न्यूमेरिकल तो हुआ ही नहीं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट तो गिवन ही नहीं है. +2 की नॉलेज है, ये +2 की नॉलेज है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी. एरिया इज मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया. ठीक है, तो मैंने हिंट पकड़ाया आपको बेटा सबको इस चीज बारे में. ओके, सो इफ इट इज डन, आई थिंक सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू मोर देन डिटेल. एक दो स्लाइड छोड़ी है आप सबके लिए, वो मैं बता चुका हूं बेटे.
बच्चे जो बात कर रहे थे बता चुका हूं, सिर्फ उसको पढ़ना है आपने और कुछ नहीं करना. Always you can get back to me beta. Now last category which I'm explaining over here, this is the last category of APCD और ये मैक्सिमम टाइम इंडस्ट्री में यूज होती है. कहां पे? अब मैं बताने वाला हूं, फिर आगे मूव कर रहा हूं. दिस इज वेट स्क्रबर्स. अब वेट स्क्रबर्स होते क्या है पहले आपको एक बार बता दूं फटाफट. ठीक है, फटाफट बता दो वेट स्क्रबर्स होते क्या है. और सबसे बड़ी बात, वेट स्क्रबर एक ऐसी एपीसीडी है, टाइप ऑफ एपीसीडी which is used for both the removal of particular and gaseous pollutants. It's the only APCD, it's the only air pollution control device used in the industry for the removal of both particulate as well as gaseous pollutant. Whereas other APCD, they are applicable on the one kind of pollutants. So mind it. अब हमने कभी एंड टाइम में बच्चों से क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन क्या दिया था एपीसीडी के बारे में कि explain the construction, working, operation of a air pollution control devices which is used for removal of both particulate as well as gaseous pollutant. अब जिसने तो वेट स्क्रबर लिखा उसका पेपर चेक हो गया, जिसने कुछ भी लिखा उसके अलावा वो सीधा 0 मार्क्स. तो ऐसे घुमा के हम क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि एपीसीडी में एक ही एपीसीडी है जो पर्टिकुलेट और गैसेस पोल्यूटेंट को एक साथ निकालेगा, एक साथ निकालेगा. कैसे बताने वाला हूं, वो है वेट स्क्रबर. सो हमने ये क्वेश्चन उठा के बच्चों को डाला एग्जाम में. तो बच्चों ने लिखा ईएसपी क्रॉस, साइक्लोन क्रॉस, ग्रेविटी क्रॉस, बैग हाउस क्रॉस, 0 नंबर. चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम बच गया हमारा. और जिसने दिखा वेट स्क्रबर बाय डिफॉल्ट उसमें मार्क्स मिले बच्चे को. Okay, so this is the only APCD which is used for controlling both particulate as well as gases pollutants. So you can have PM control, you can have gases control, you can have VOC control also, volatile carbons. कैसे? पेंट इंडस्ट्री में जब काम होता है तो पेंट इंडस्ट्री में मैक्सिमम एयर में VOC आते हैं. So get rid of VOC, you can use scrubber. तो जहां भी आप जाओगे बेटा आपको ये स्क्रबर मिलेंगे इंडस्ट्री में, आपको मोस्टली आप मिलेंगे आपको. ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है बेटा, पहले इसको समझा दूं बेटा थोड़ा सा, फिर मैं आगे फटाफट मूव कर जाऊंगा बेटा. तो पहला मेरा पूरा कंसंट्रेशन आपको समझाने में रहेगा बेटा, उसको आप ध्यान से समझना, फिर आपको आगे समझ आ जाएगा. बेटा आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, बचपन में आपने कई बार देखा होगा, मेरे को काफी बच्चों को पता होगा चीज, और आपने देखा भी होगा, जो रूटीन आप एक एक कॉलोनी में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, मोस्टली बचपन में क्या करते थे, विलेज में स्पेशली और रोड पे स्पेशली और शॉप्स के सामने स्पेशली, कई विलेज शॉप्स वाले क्या करते हैं, विलेज वाले या घर वाले क्या करते हैं, मोहल्लों में क्या करते हैं, अपने घर के आगे शाम को या सुबह पानी का स्प्रे करते हैं, बाल्टी लेके कप लेके पानी का स्प्रे करते हैं, ऐसे पानी छिड़काते हैं थोड़ा सा. ठीक है जी, वो क्यों करते हैं? बड़ा ऑब्वियस है कि जो मिट्टी उड़ रही है, वो जो मिट्टी उड़ रही है वो घर के अंदर ना आए, यही पर्पस होता है. और शो वालों को ये पर्पस होता है. अब देखोगे शो वाले क्या करते हैं, दुकान के सुबह सुबह 9-10-11 बजे जब आते हैं तो स्प्रे करते हैं अपने सड़क के ऊपर, जो शॉप के सामने. वो कुछ नहीं है बेटा, वेट स्क्रबर है, देसी वेट स्क्रबर है. किया क्या उन्होंने, पहले उसको बता दूं फिर मैं यहां मूव कर जाऊंगा फटाफट. किया क्या उन्होंने, so whatever the dust particles which are present in the air, what they're going to do, they're going to spray the liquid, they're going to spray the water. So once they can spray the water get distributed into small droplets in the air. So what it get distributed into small droplets in the air, it is going to attach to the dust particles. So particles becomes heavy. So when the dust particles become heavy, they keep on settling by gravity, no doubt, to the ground. तो no doubt वो चीज काफी देर तक वहां इफेक्टिव रहेगी, तभी डस्ट अंदर नहीं आएगी. तो ये फंडा था. और एक फंडा वो था जो आगे बताने वाला हूं, जो इसी में फिर यूज होने वाला है, कि जब वो उस वाटर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के टाइम कप के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, 5 फिंगर्स करके हाथ रखते हैं. वो हाथ रखने का पर्पस क्या होता है कि आप जब उसको स्प्रे करोगे ऐसे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना डस्ट और वाटर के ड्रॉपलेट्स में कांटेक्ट ज्यादा होगा, जितना कांटेक्ट ज्यादा होगा उतनी सेपरेशन ज्यादा होगी आपकी. यही फंडा यहाँ पे यूज हो रहा जो मैंने आपको समझाया. इफ यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग, ओके. सो डस्ट कलेक्टर्स दैट यूज लिक्विड, any kind of liquid, they are called wet scrubbers. Mostly the stemming liquid is usually water that comes in the contact with gas stream containing dust particles. और मैं जो कुछ बता रहा हूं ना, अब उस एग्जांपल से आपको समझ आना चाहिए, जो मैंने आपका शॉप की एग्जांपल लेके बताई है. मैंने आपको जो भी कुछ बताया मैंने,
काउंटर क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, हो तो मोस्ट वेलकम बाद में, लेकिन जो मैंने बताया बिल्कुल उसको कोरिलेट करो जो मैंने बताया है। और ये भी अगला पॉइंट, ग्रेटर द कंटेक्ट ऑफ गैस लिक्विड हायर विल बी द डस्ट रिमूवल, यस और नॉट। और ग्रेटर कंटेक्ट कैसे करवाओगे, जो मैंने अभी बताया था कि स्प्रे करने के टाइम कप के ऊपर हाथ रख लोगे, हाथ रखोगे तो 5 फिंगर्स की क्रॉस कर रखे ऊपर वाला, तो जब ऐसे स्प्रे करोगे जोर से तो लिक्विड जो है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जब आप स्प्रे करोगे। अगर कप को ऐसी घेर दो और फिंगर रख के घेरोगे तो नो डाउट वो ज्यादा एरिया कवर करता है, क्यों, सरफेस एरिया बढ़ गया। सेम फंडा यहां पे भी है। अब ये थोड़ा वेट कर लो, मैं आगे बता रहा हूं। द क्लीन गैस आर नॉर्मली पास थ्रू मिस्ट एलिमिनेटर डिमिस्टर पैड्स टू रिमूव द वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द गैस स्ट्रीम। ये मैं बताऊंगा, आगे बताने वाला हूं, जब फिगर आएगी तो वहां पे समझाऊंगा डिमिस्टर पैड्स क्या होते हैं, मिस्ट एलिमिनेटर क्या होता है। ठीक है जी। सो डर्टी वाटर नीचे आ गया बेटा, बताऊंगा वो डर्टी वाटर नीचे आ गया बेटा। घर की एग्जांपल भी दी, शॉप की एग्जांपल दी, तो डर्टी वाटर नीचे आ गया, तो नो डाउट नीचे आने पे ये डर्ट नीचे सेटल हो जाती है, क्लीन वाटर फिर से रिसाइकिल कर लेते हैं हम। ठीक है। डर्ट इज रिमूव फ्रॉम द कवर इन द क्लैरिफिकेशन यूनिट। क्लैरिफिकेशन यूनिट क्या होता है, एक यूनिट होता है, इसमें पानी जो नीचे आया है जिसको डस्ट डिजोल्व हो गई उसको यहाँ स्टेन कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे रिटेन कर देते हैं, रिटेन करने में डस्ट सेटल हो जाएगी, डस्ट सेटल हो गई, क्लियर वाटर निकाया है, उसको फिर स्प्रे पे ले गए हम यहाँ पे, तो वाटर हम सेव करेंगे जिसके लिए, और डस्ट रिमूव हो जाएगी, और इसको बोलते हैं क्लैरिफिकेशन यूनिट। ओके। सो देयर आर लार्ज वैरायटीज ऑफ स्क्रबर्स। सो सबके 3 बेसिक प्रिंसिपल हैं बेटा, जो अभी बताया मैंने आपको, और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर फटाफट। द 3 बेसिक प्रिंसिपल किसी भी टाइम में होंगे बेटा। फर्स्ट इज गैस ह्यूमिडिफिकेशन, गैस लिक्विड कंटैक्ट एंड गैस लिक्विड सेपरेशन, नो डाउट। द फर्स्ट पर्पस इज गैस ह्यूमिडिफिकेशन। जितनी ह्यूमिडिफाई ज्यादा करोगे, देखो यही मैंने बोला था, देखो जरा, गैस ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कंडीशंस फाइन पार्टिकुलेट्स टू इंक्रीज देयर साइज सो दे कैन बी कलेक्टेड मोर इजीली। वो कैसे होगा, सरफेस इंक्रीज करने पे। जितना सरफेस ज्यादा इंक्रीज करोगे तो गैस ह्यूमिडिफिकेशन ज्यादा होगी, जितनी गैस ह्यूमिडिफिकेशन ज्यादा होगी उतने फाइन पार्टिकल्स अटैच करेंगे किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा फाइन मॉलिक्यूल्स अटैच करेंगे उतनी सेपरेशन बहुत कलेक्ट इजी होगी। और सेकंड है गैस लिक्विड कांटेक्ट, जो मैंने अभी बताया था, जितना बेटर गैस लिक्विड कांटेक्ट करोगे आप उतनी कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ जानी है। And no doubt, third step is always, once all these things have been done, the third step is the gas liquid separation. गैस लिक्विड सेपरेशन करोगे तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। ओके। अब ये भी मैं फटाफट मूव करूं बेटा आगे, आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं कि अब रिमूवल मैकेनिज्म क्या है। रिमूवल मैकेनिज्म सेम है जो मैंने बैग हाउस में करवाए थे बेटा, अगर आपको याद है। ठीक है जी। इन वेट स्क्रबर्स द डस्ट पार्टिकल्स व्हिच यू वांट टू रिमूव, व्हिच यू एक्चुअली रिमूविंग, they can be removed by following certain mechanism, and no doubt first is always the impaction। क्या है मैं बताने वाला हूं। सेकंड इज डिफ्यूजन, डिपेंडिंग अपॉन पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज बहुत कम है तो डिफ्यूजन होगा, पार्टिकल साइज ज्यादा तो इंपैक्शन होगा। और थर्ड इज द फॉर गैस, दिस इज फॉर गैस, दैट इज अब्जॉर्प्शन। अब कैसा हो रहा है देखो फटाफट, दिस इज इंपैक्शन, दिस इज इंपैक्शन। इंपैक्शन इज नो डाउट, मैंने आपको बताया था, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये गैस आ रही है आपकी, गैस में डस्ट पार्टिकल्स हैं, सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन गैस स्ट्रीमलाइन, गैस कैन चेंज देयर डायरेक्शन, गो पास दिस वाटर ड्रॉपलेट। और वाटर ड्रॉपलेट कहां से आ गया, जो गैस लिक्विड कांटेक्ट हो रहा है आपका। और particles due to inertia of rest, they keep on traveling in the straight line, and then out once they get traveling in straight lines, they collide with the water droplet. Once they collide with the droplet, they are humidified. Once they are humidified, they are collected. Okay? और ये भी पढ़ लेना, इंपैक्शन कैसे इंक्रीज होगा, आपको पता ही है बेटा। इंपैक्शन इंक्रीज तब होगा जब पार्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो रहा है और रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में इंक्रीज होगी, या लिक्विड ड्रॉपलेट साइज इंक्रीज हो जाए। बिल्कुल सही है, जितना ड्रॉपलेट साइज ज्यादा होगा, सॉरी डिक्रीज होगा, जितना डिक्रीज होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, या पार्टिकल साइज ज्यादा हो। ओके। एंड सेकंड डिफ्यूजन, ये पढ़ लेना बेटा। डिफ्यूजन क्या है मैंने बताया था। Now, some small, very small particles, they will be having a Brownian movement, zigzag motion. And while moving in a zigzag motion, due to Brownian movement, they strike to the water droplet. Once they strike the water droplet, they get removed. And no doubt, third is a particular phenomena, absorption applicable to the gases. Okay, gases means you want to remove SO2, you want to remove NO2, you want to remove carbon monoxide, you want to remove carbon dioxide. So depending upon which gas you want to remove, you choose the solvent accordingly.
because water can be a solvent for one or two gases. It cannot be a very good solvent for each and every gas. So depending upon which solvent is used, it always applicable which kind of pollutant you want to remove. SO2, NO2, CO और CO2 depending upon application. तो देख लो कि उस पर्टिकुलर पोल्यूटेंट की, SO2 की, NO2 की किस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबिलिटी है. Okay, so depending upon application. So I'm showing absorption. So this is absorption. You know, absorption is a bulk phenomena. So this is bulk phenomena. So gases, they are getting into bulk of the liquid. This is called bulk phenomena. Okay. और ये डिपेंड करेगा जो मैंने बताया solubility पे. किसकी? Solubility governs the amount of liquid required and necessary contact time. तो no doubt अगर solubility ज्यादा है तो आपको सॉल्वेंट कम चाहिए. अगर सॉल्युबिलिटी कम है किसकी? पोल्यूटेंट की, गैसेस पोल्यूटेंट की, वो जो आपने चूज नहीं किया प्रॉपर, तो मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड सॉल्वेंट बढ़ जाएगा आपका, तो खर्चा बढ़ जाएगा आपका, कॉन्टैक्ट टाइम भी बढ़ जाएगा, कॉन्टैक्ट टाइम भी बढ़ जाएगा. सोच के देख लो ना बेटा, अगर आपने कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज कर लिया जिसमें एक पोल्यूटेंट, गैसेस पोल्यूटेंट की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, जबरदस्त सॉल्युबिलिटी है उसकी, तो नो डाउट उस पोल्यूटेंट को अब्सॉर्ब करवाने के लिए, नॉट अब्सॉर्ब करवाने के लिए उस लिक्विड की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगी और कंटैक्ट टाइम भी कम हो जाएगा, बिकॉज कम कंटैक्ट टाइम में कम लिक्विड में ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगी आपकी. ओके, सो दिस इज समथिंग यू रियली वांट. तो ये जो चीजें बता रहा हूं बेटा, इसको दिमाग में रखना, इसी में से क्वेश्चन आएंगे आपके. ओके ये रहा बेटा जो मैंने बताया सारा, इसको पढ़ लेना. ठीक है जी. अब इसमें सारे पॉइंट पढ़ लो, बहुत सिंपल है बेटा, लेकिन कुछ पॉइंट मैं समझा रहा हूं. ये वाला पॉइंट देखो, टू मैक्सिमाइज द मास ट्रांसफर, किसके बीच में? गैस और लिक्विड के बीच में. अब्सॉर्बर कौन सा जो बताने वाला हूं? अब्सॉर्बर जिसमें अब्सॉर्ब होती है चीजें, जनरली ऑपरेट्स इन काउंटर करंट फैशन. काउंटर करंट फैशन क्या होता है बेटा? ये काउंटर करंट फैशन देखो, काउंटर करंट में ये आपका अब्सॉर्बर है, ऊपर से आएगा लिक्विड, नीचे से आएगी गैस. दोनों का नेचुरल फिनोमिना है. बाय ग्रेविटी ये नीचे फ्लो करेगी और बाय नेचुरल फिनोमिना गैस ऊपर फ्लो करेगी, एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दिस ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड काउंटर करंट फैशन. अगर दोनों सेम में जा रहे हैं, वो अभी नहीं बताने वाला, वो लॉन्ग प्रोसेस स्टोरी है जब बच्चों को पढ़ाते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं को करंट. को करंट व्हेन दे आर बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन. व्हेन बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट फैशन. सो काउंटर करंट में आपका मैक्सिमम मास ट्रांसफर होगा. बताऊंगा अभी टाइम आपको कैसे है. ठीक है. सो सॉल्वेंट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फटाफट देख लो उसको. सॉल्वेंट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. अब वो सॉल्वेंट की सिलेक्शन क्या है बेटा, फटाफट देखो. सॉल्वेंट solubility, the solvent which you are going to use, okay, you choose according to, first of all, solubility. Must have a high soluble for the pollutant which you are going to select. See that higher the solubility, lower the amount of solvent required. Yes or not? Third point is very important. The solvent should also be non-volatile to prevent the excessive carry over in the gas effluent. अगर solvent जो आपने चूज किया है खुद ही volatile हो गया, ये देखो जो मैं अभी बताने वाला था, समझो इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा इस पे, और मैसेज उठा के क्वेश्चन डालते हैं. देखो यहां से लिक्विड आ रहा है, यहां से गैस आ रही है, हमने गैस को रिमूव करना लिक्विड के साथ, सॉल्वेंट के साथ, इसके साथ. अगर सॉल्वेंट खुद ही वोलेटाइल हो गया तो सॉल्वेंट के खुद के वेपर यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे, तो आप इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, इसको. गैस भी ऊपर जा रही है, ये सॉल्वेंट जो इसको रिमूव करने के लिए यूज हुआ था गैसेस पोल्यूटेंट को, वो खुद ही वोलेटाइल होकर ऊपर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपके मिक्सचर आ जाएगा. तो देयर विल बी एक्सेसिव कैरी ओवर, ये कैरी ओवर आ गया इन द गैस एफुलेंट व्हिच यू डोंट वांट. एंड दीज आर द अदर प्रॉपर्टीज. नो डाउट फ्लेमेबिलिटी कम होनी चाहिए, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए सॉल्वेंट की. यस और नॉट? विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा. केमिकल स्टेबिलिटी, क्रोसिविटी कम होनी चाहिए, लो टॉक्सिक, नो ऑल दिस पॉइंट्स यू नीड टू टेक केयर. अब इस पे आ जाओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद मैं वाइंड अप कर दूंगा. अब ये है स्क्रबर जो हम याद कर रहे हैं बेटा, जो मैंने बताया आपको. अब सब सीधी बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आगे फटाफट मूव कर जाऊंगा बेटा इसके बारे में फटाफट. ये देखो मैंने आपको बताया था, ये आपका चैम्बर है. ठीक है, ये चैम्बर है, इस चैम्बर के ऊपर से लिक्विड आ रहा है, नीचे से गैस आ रही है. अब गैस लिक्विड कंटैक्ट कराना है तो मेरे को एक सरफेस प्रोवाइड करना पड़ेगा इसके अंदर. सोचो क्यों? अगर मैं सरफेस प्रोवाइड नहीं करूंगा तो सिस्टम, सोचो होलो है, एक होलो पड़ा है, होलो सिलेंडर पड़ा हुआ है, ऊपर से लिक्विड फेंका, एकदम से नीचे आ जाएगा अंडर ग्रेविटी. गैस फ्लो कराई, गैस एकदम से ऊपर बाहर निकल जाएगी, दोनों के बीच में कंटैक्ट ही नहीं होगा. देयर विल बी अ मिनिमम कंटैक्ट बिटवीन दीस टू.
लेकिन अंदर मैं अगर कुछ ऐसी चीज पैक कर दूं, कौन सा एक, जैसे मैंने कुछ मटेरियल पैक कर दिया, कौन सा मटेरियल बताने वाला हूं इस चीज के लिए, उसको पैकिंग बोलते हैं, दिस कॉल्ड पैकिंग। तो पैकिंग में भर दूंगा तो होगा क्या, ध्यान ध्यान सुनना इस चीज के लिए, पैकिंग भर दूं, उसके बीच में कोई मटेरियल भर दूं, जैसे हम बताने वाला हूं, मटेरियल बताने वाला हूं, तो जैसे लिक्विड आएगा ऊपर से, पहले वो सारी पैकिंग को वेट करेगा, वेट करता 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 वेट करता 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 यहां से लिक्विड बाहर आएगा, दिस मींस यहां तक पूरी पैकिंग वेट हो चुकी है। अब जैसे नीचे से गैस पास करवाओगे आप, तो गैस जब ऊपर फ्लो करेगी तो इस पैकिंग के बीच में से फ्लो करेगी ऐसे ऐसे करके, तो जो पैकिंग के बीच बीच में से फ्लो करेगी तो पैकिंग वेट हो चुकी है, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। तो जैसी पैकिंग सॉल्वेंट से वेट हो चुकी है तो गैस अब कांटेक्ट करेगी सॉल्वेंट के साथ। मैं बता रहा हूं इमेजेस, अभी वेट करो, इमेजेस बता रहा हूं आपको, ठीक है जी। तो जैसी गैस गई, गैस अब पैकिंग के बीच में से निकलेगी, तो पैकिंग वेट हो रखी है, तो किससे वेट हो रखी है, सॉल्वेंट के साथ। अब गैस को सॉल्वेंट के साथ कांटेक्ट करने के लिए एक स्पोर्ट मिल गई है, उस स्पोर्ट को बोलते हैं पैकिंग। क्या बोलते हैं, पैकिंग। सो पैकिंग इज जस्ट देयर टू प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर गैस लिक्विड कंटेक्ट। और उस पैकिंग की एग्जांपल है ये वाली जो मैंने यहां फिगर में दिखा रहा हूं। अब पैकिंग क्या होती है बताता हूं। पैकिंग कुछ रैंडम स्ट्रक्चर होती है बेटा। कौन सी रैंडम स्ट्रक्चर होती है, हम ऐसी को स्ट्रक्चर बनाते हैं कि उसका एक मैक्सिमम एरिया है। देखो अगर मैंने पैकिंग ऐसे बनाई है, देखो अब देखो इसमें सरफेस एरिया देखो कितना बढ़ जाएगा, ये सरफेस एरिया, इसका बाहर वाला सरफेस एरिया, इसका अंदर वाला सरफेस एरिया, अंदर जो ये क्रॉस कर रखा है ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया। अब ये सारा वेट हो रहा है, देखो ये सारा वेट हो रहा है, अंदर से भी बाहर से हो रहा है ना। तो जितना ये वेट ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना नो डाउट गैस कॉन्टेक्ट प्रॉपर होगा बेटा आपका। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ पैकिंग। ये देखो ये भी पैकिंग है, देखो अब ये पैकिंग अंदर मैं डालूंगा तो ये वेट हो जाएगा, इसका बाहर वाला वेट हो जाएगा, ये बाहर वाला वेट हो गया, इसका अंदर वाला वेट हो जाएगा, ये वेट हो गया, इसके अंदर वाला वेट हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो बैठ के कि सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो एक छोटी सी पैकिंग, ये पता बहुत छोटी सी पैकिंग है, आपके फिंगर टिप पे आ जाएगी, फिंगर टिप पे आ जाएगी। तो सोचो एक छोटी सी ये पैकिंग कितना सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसी अगर मैं 1,00,000 पैकिंग इसमें डाल दूं, so can you just imagine the surface area available for gas contact? So this is called पैकिंग बेटा। देखो कितनी छोटी पैकिंग है। तो हमने ऐसी पैकिंग डिजाइन करनी है जो मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करे, मिनिमम स्पेस ऑक्युपाई करके बचे। और इनका नाम है बेटा, वो इसको नाम है पॉल रिंग्स और इंटरलॉक सैडल्स नाम है बेटा, डिपेंडिंग ऑन जहां इसने डिस्कवर किए जिसके लिए। तो ये इसकी एप्लीकेशन है बेटा, ठीक है। अब ये एक एप्लीकेशन है बेटा प्ले टाइप स्क्रबर्स की, जो फटाफट देख लो बेटा, 10 मिनट पड़े अभी, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फटाफट देख लो बेटा, प्ले टाइप स्क्रबर्स, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से देखो। अब मैं डेमिस्टर यहाँ पे बताने वाला हूँ, मैं छोड़ा था, मैं डेमिस्टर आपको बोला था कि बताऊंगा डेमिस्टर्स, कुछ नहीं है। देखो बेटा इसमें मैंने प्लेट्स दे रखे हैं, ये रही प्लेट, देखिए प्लेट आपको, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, ये पैक्ड टावर थे, ये प्लेट टाइप टावर्स हैं। क्या होता है इसमें, देखो जरा ध्यान से देखना आपने, यहां से लिक्विड आया, कौन, ये सॉल्वेंट आपका, और गैस जिसमें से पर्टिकुलेट्स रिमूव कर रहे हैं वो यहां से आ रहा है बेटा आपका, ओके। तो जैसे गैस यहां पे जाएगी, मैंने यहां से डिस्ट्रीब्यूट करती, देखो ये डिस्ट्रीब्यूटर लगे हैं, देखें डिस्ट्रीब्यूटर यहां पे, तो गैस यहां से डिस्ट्रीब्यूट की। अब ध्यान से, मैंने वो गैस का फ्लो रेट इतना मेंटेन करना है। अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट परफोरेटेड है, जाली है एक तरह की, ठीक है। प्लेट परफोरेटेड है, परफोरेटेड मींस एक तरह के होल्स हो रखे हैं इसके बीच में, बड़े फाइन होल रखे हैं। अब मेरे से वही पूछे कि जब इसमें होल हो रखे हैं तो लिक्विड जो सॉल्वेंट ऊपर से आ रहा है वो इस होल्स के थ्रू नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये यहां से नीचे आ रहा है, देखो यहां से नीचे आके यहां फ्लो किया, यहां नीचे गया, यहां फ्लो किया, यहां पिया, आउटलेट आ गया इसके लिए। ये परफोरेशन से नीचे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने नीचे जो गैस दे रहा हूं, उस गैस का फ्लो रेट इतना मेंटेन कर रखा है कि इतना ज्यादा फ्लो रेट है कि वो गैस इस परफोरेशन के थ्रू बबल कर रही है। देखो दिख रहा है बबल आपको, ये देखो बबल हो रहे हैं। तो जब गैस का फ्लो रेट इतना है कि जो प्लेट के पोर्स के थ्रू बबल करके ऊपर जाएगी बेटे वो, तो वो लिक्विड को नीचे ड्रॉप डाउन नहीं होने देगी। तो लिक्विड एक प्रॉपर डाउन कमर के थ्रू यहां से नीचे आएगा, जो स्पेस बनी हुई है। अगर मैं फ्लो रेट कम कर दूं इस गैस का, जिसमें से पार्टिकुलेट रिमूव करने हैं आपको, और जिसमें आपको ये गैसेस पोल्यूटेंट और पार्टिकुलर रिमूव करने हैं आपके, इसका फ्लो रेट कम हो गया। फ्लो रेट कम होने की वजह से क्या होगा, जो लिक्विड सॉल्वेंट यहां से फ्लो कर रहा है वो इसमें पोर में से आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे पोर में से आना शुरू हो जाएगा तो ये पूरा कॉलम लिक्विड से भर जाएगा, एंड दिस इज वेयर यू कांट ऑपरेट दिस इंस्ट्रूमेंट, एपीसीडी, प्लेट टाइप स्क्रबर्स।
ठीक है जी। अब होता कैसे है, सिंपल बात, सेपरेशन कैसे होती है, ध्यान से देखो बेटा। जब गैस यहां से पास करेगी तो बबल आउट करके लिक्विड में से बाहर निकलेगी। तो जब लिक्विड से बाहर निकल रही है तो देखो, जैसे लिक्विड से बाहर निकलेगी तो लिक्विड से बाहर निकलने से पहले इस दोनों के बीच में, बबलिंग लिक्विड एंड दिस गैस, देयर विल बी अ कांटेक्ट। व्हेन देयर इज अ कांटेक्ट, इस लिक्विड के अंदर वो अपने पोल्यूटेंट को डिसॉल्व करवा, अब्सॉर्ब करवा देगी। जो बच जाएगा अगली प्लेट पे अब्सॉर्ब हो जाएगा, जो बच जाएगा अगली प्लेट पे अब्सॉर्ब हो जाएगा, हो गया अब्सॉर्ब। तो क्लीन गैस ऊपर से निकलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन क्लीन गैस अपने साथ हमेशा मॉइस्चर लेके जाती है। कैसे, एग्जांपल देता हूं आपको। आप घर में जब चाय बनाते हो, तो मैं एग्जांपल दी है, तो पानी बॉयल होता है, तो पानी जब बॉयल होता है ऊपर स्टीम निकलती है, जैसे स्टीम निकलती है उसके ऊपर हाथ रखो, आपका हाथ वेट हो जाएगा। दिस मींस जो एयर विद प्रेशर निकल रही है उस पानी में से अपने साथ वाटर भी अपने साथ लेके जा रही है, ठीक है ना, आपका हाथ वेट हो जाएगा। भाई जो अपने साथ ये गैस लिक्विड लेके जा रही है वो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट निकल गया तो आपका सॉल्वेंट लॉस हो जाएगा। तो 10 लीटर सॉल्वेंट यूज किया, 1 लीटर तो ऐसे निकल गया, तो इंडस्ट्री लॉस हमें आ जाएगी। तो यहाँ पे डिमिस्टर लगाते हैं। डिमिस्टर क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, कुछ नहीं, ऊपर एक डिमिस्टर लगा दिया, देखो ये लगा हुआ है, ये चल नहीं रहा, स्टेशनरी है। अब जैसी गैस निकलेगी निकलेगी इसके ऊपर सॉल्वेंट लेके फाइनली इससे टकराएगी, जब इससे टकराएगी, सेम फंडा, इनर्शिया ऑफ इनर्शिया मोशन, गैस अपनी डायरेक्शन चेंज करके बाहर, लिक्विड वहीं पे रह जाएगा और लिक्विड ड्रॉप डाउन होकर नीचे आ जाएगा वापस। वही हम चाह रहे हैं चीज के लिए, ठीक है जी। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इनफ बेटा। ओके मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपको। एक बार वीडियो मेरा फिर से सुनना बच्चे इस चीज के बारे में, फिर भी डाउट है मेरे को फोन करना। अब ये चीजें बेटा नहीं है स्लाइड्स में बेटे, मैं ये हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको, जो आपका डिजाइन है, बाकी दिया हो इसमें नो डाउट। बाकी आप मेरा वीडियो सुनना जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ जिसके बारे में, ठीक है, कैसे कंटेक्ट होगा, क्यों बबलिंग करनी है, क्यों ड्रॉप डाउन नहीं होता पोर्स के बीच में से, जो प्लेट पोरस है। ओके, क्यों हम प्लेट के ऊपर गैस लिक्विड कंटेक्ट कर रहे हैं, तो प्लेट के ऊपर ये गैस लिक्विड कंटेक्ट होगा बच्चे आपका। ओके, तभी ये आपके पास सेपरेशन होगी किसकी, जो इस गैस में पर्टिकुलर मैटर आ रहा है और गैसेस आ रही है, तो हर प्लेट के ऊपर सेपरेशन होगी इसकी। अब ठीक है, सो दिस इज सो द लास्ट सेम कैटेगरी में एक और एप्लीकेशन, सेपरेट आवर्स। अगर आपको ये नहीं ऑपरेट करना, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी कॉस्टली प्रोसेस इन इंडस्ट्री, क्योंकि काफी इसको ऑपरेट करना पड़ता है, तो सेपरेट आवर यूज कर लो। सेपरेट आवर क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये टावर है, ये आपका टावर है, इसके ऊपर जो लिक्विड आ रहा है उसके ऊपर मैं स्प्रे लगा दूंगा, फाइन स्प्रे लगा दूंगा। जैसे आपके घर में शावर होता है, देखा आपने, घर में नहाते हो आप, तो एक बकेट से नहा लो, पानी ज्यादा वेस्ट होगा, और आधी बकेट को स्प्रे करवा दो ऊपर से शावर से। शावर का पर्पस क्या होता है पता है, शावर का पर्पस होता है कि फाइन ड्रॉपलेट्स में इंक्रीज कर देता है, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जितने कप आप 5 कप डाल के या 10 कप डाल के अपनी बॉडी को वेट कर रहे हो, उसी एक कप को अगर आप स्प्रे फॉर्म में डाल दो तो वो एक कप आपकी पूरी बॉडी को वेट कर देगा। सी द डिफरेंस, वही फंडा यहां पे यूज हो रहा है। तो मैं ऊपर फाइन स्प्रे लगा के वो सॉल्वेंट को स्प्रे कर दूंगा, जैसे स्प्रे अंदर हुआ तो लिक्विड जो है, जो आपका सॉल्वेंट है, वो बड़े 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 फाइन ड्रॉपलेट्स के बीच में यहाँ पे मिस्ट फॉर्म में आ जाएगा, आ गया मिस्ट फॉर्म में, और नीचे से गैस आ रही है। अब मैं इसके अंदर होल रखा हुआ, मैंने कुछ लिखा ना प्लेट ना पैकिंग, कुछ नहीं रखी, तो जैसे ही अंदर गैस डाली तो गैस मिस्ट की फॉर्म में जितने भी आपके ये पार्टिकुलर बने हैं, ड्रॉपलेट्स बने हैं, ठीक है, उसका कंटेक्ट में करेगा, जितना कंटेक्ट ज्यादा होगा सॉल्ट लिक्विड सेपरेशन हो जाएगा, सॉल्ट लिक्विड गैस लिक्विड सेपरेशन हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉपलेट एटमाइजेशन। एटमाइजेशन बोल देते हैं इसको, ताकि फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ठीक है जी। सो ओनली 3 मिनट्स आर लेफ्ट, आई कैन लीव। इसमें कुछ नहीं बेटा, ये अब्जॉर्प्शन सेम फंडा जो मैं बताया आपको, यस और नॉट, वही चीज देखो, liquid in, liquid out, gas in, gas out, this is absorption or stripping. Sometimes इसका stripping column, why का stripping column, क्योंकि here the gas is being stripped off, gas is stripped off, किसका, through stripped off from its constituents of gases and particular matter. Okay, so this is overall discussion बेटा। कंडेंसेशन पढ़ लेना, कुछ नहीं बेटा, कंडेंस में वही है कि कंडेंस कर देना है, नॉन कंडेंसेबल गैस, सॉरी जो भी है ये कुछ नहीं है, पढ़ लेना इसको एक बार। देखो क्या किया मैंने, कंडेंस में क्या किया, कुछ नहीं किया, एक चैम्बर लिया, चैम्बर के अंदर अपने सॉल्वेंट रखा, गैस इनलेट की, सारी गैस के बीच में से पास कर दी, लिक्विड के बीच में पास कर दी। तो जब गैस इसके बीच में पास करूंगा तो गैस के जो पर्टिकुलेट हैं और जो है इसके बीच में कंडेंस आउट हो जाएंगे सारे, और गैस क्लियर आउट और कंडेंसेट बाहर सीधा। ओके, सो ये ओवरऑल डिस्कशन है बेटा एपीसीडी की जो मैंने आपसे की है। सो आई हैव डन इनफ डिस्कशन ऑन एपीसीडी। बाकी अब कुछ नहीं है बेटा,
एड्सॉर्प्शन है, एक बार पढ़ लेना बेटा एड्सॉर्प्शन क्या होता है। अब एड्सॉर्प्शन आपको पता है सरफेस फिनोमेना होता है, पढ़ लेना इसके बारे में, कुछ भी नहीं है। Now when you don't have any other choice, you can use adsorption. Adsorption is what you want to use some adsorbent material like activated carbon, silica gel, alumina. There are so many kind of adsorbents. कुछ नहीं करना, एक चैम्बर में लो, चैम्बर में adsorbent fill कर दो, कर दिया, पीछे से गैस पास कर दो। Once you pass gas from the bottom, now gas you have constituent we want to remove, particulate matter as well as gases pollutants. So once you pass the gas, they will pass through this adsorbent. So this adsorbent will, you know, absorb the constituents, and the clean gas will pass through, no doubt. बट यहाँ पे एक मेजर ड्रॉबैक आता है कि जो एब्जॉर्बेंट होता है वो रीयूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपके उस सरफेस के ऊपर अब पर्टिकुलर मैटर और गैसेस एब्जॉर्ब हो चुके हैं, देन यू हैव टू गेट रिड ऑफ। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ वेरी गुड एब्जॉर्बेंट एंड देन डीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म फॉर दैट। ओके, सो ऑलरेडी इट्स 10:29, सो आई एम आगे उसमें कुछ नहीं बेटा, ऑटोमोबाइल्स का एक बार पढ़ लेना, एक दो साइड है बस, ठीक है, फिर में से आप बात कर लेना, लेकिन मेन कंस्टिट्यूट है आपको इसी में से आएगा, नो डाउट, जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं, जो मैंने आपको बताया डिटेल, ठीक है बच्चे। सो आई थिंक सो आई शुड स्टॉप हियर, एंड if you have any doubts